بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، یہ واقعہ ایک نیک عورت کا ہے۔ حضرت جعفر بن صادق فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص سفر پر جانے لگا۔ اپنے بھائی سے وعدہ لیا کہ تم میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گے۔ اس نے بھی اقرار کر لیا اور یقین کراتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ بے فکر ہو کر سفر پر جائیے، آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ملے گی، میں ہر طرح سے آپ کی زوجہ کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ وہ شخص مطمئن ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بھابھی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، لیکن عورت کے حسن و جمال نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ وہ آدمی اپنے ہی بھابھی پر عاشق ہو گیا اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر اس کی بیوی کو اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے گناہ کی دعوت دی۔ وہ عورت پاک دامن اور باحیا تھی۔ اس نے انکار کر دیا، لیکن جب بدبخت دیور اپنی کوشش میں ناکام ہونے لگا تو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ عورت نے کہا، اللہ کی قسم، میں تمہاری گناہ پر دعوت کبھی قبول نہ کروں گی، تم جو چاہے میرے ساتھ کر لو۔ پاک باز عورت کے ایمان افروز اور جرأت مندانہ انداز کو دیکھ کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ لیکن جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو وہ کہنے لگا، میرے بھائی، جانتے ہو تمہاری بیوی نے تمہارے جانے کے بعد کیا کیا ہے؟ سنو، وہ مجھے بدکاری کی دعوت دیا کرتی تھی۔ توبہ توبہ، وہ تو بڑی بدچلن ہے۔ اس نے تمہارے جانے کے بعد نہ جانے کیا کیا ہے۔ بھائی کی یہ باتیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا، بھائی جان، اللہ کی قسم، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے حقیقت تو واضح کر دی ہے، اب تمہاری مرضی۔ بھائی کی یہ باتیں سن کر اس کے دل میں یہ بات چبھ گئی کہ واقعی میری بیوی نے خیانت کی ہے۔ غم و غصے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت کرنا بالکل بند کر دیا۔ آخرکار ایک رات موقع پا کر اپنی پاک باز بیوی کو تلوار سے لگاتار وار کر کے شدید زخمی کر دیا، اور جب یقین ہو گیا کہ یہ عورت مر چکی ہے تو وہاں سے بھاگ گیا۔ اللہ کی قدرت کہ شدید زخمی ہو جانے کے باوجود نیک خاتون ابھی بھی زندہ تھی۔ وہ گرتی پڑتی اللہ کی عبادت خانے کے قریب پہنچی۔ اس کی درد بھری آہٹ سن کر ایک راہب نے اپنے غلام کو بلوایا۔ دونوں اسے اٹھا کر عبادت خانے میں لے آئے۔ نیک نیت راہب بڑی توجہ سے اس کا علاج کرتا رہا، جس کی وجہ سے وہ عورت بہت جلد صحت یاب ہو گئی۔ راہب کی زوجہ فوت ہو چکی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ راہب نے عورت سے کہا، اگر تم ٹھیک ہو گئی ہو اور جانا چاہو تو خوشی سے چلی جاؤ، اور اگر یہاں رہنا چاہو تو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ عورت نے کہا، میں یہیں رہ کر آپ کی خدمت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ راہب نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ نیک و پارسا خاتون بڑی دلجمعی سے اس کی پرورش کرنے لگی۔ راہب کا سیاہ فام غلام عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر بدنیت ہو گیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی نیت بد کا اظہار کرتے ہوئے اس پاک باز اور باحیا عورت کو بدکاری کی طرف بلایا اور کہا، بخدا، یا تو میری بات مان لے اور میری خواہش پوری کر دے، ورنہ میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ اللہ سے ڈرنے والی عورت نے کہا، میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گی، تجھے جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لے، چاہے مجھے قتل کرنا ہے بے شک مجھے قتل کر ڈال۔ وہ بدکار غلام اپنی ناکامی پر ماتم کرتا ہوا دل میں بغض لیے وہاں سے چلا گیا۔ لیکن رات کی سیاہی نے جب ہر چیز کو ڈھانپ لیا تو وہ غلام عورت کے پاس آیا۔ بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا، وہ اسے بہلا رہی تھی۔ ظالم شہوت پرست غلام نے تیز چھری سے بچے کا گلا کاٹ دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ غلام دوڑ کر اس راہب کے پاس گیا اور کہا، حضور، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مہمان خبیث عورت نے کیا کارنامہ کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس نے آپ کے ننھے منھے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ کیسی ظالم عورت ہے۔ راہب غلام کی باتیں سن کر بہت غصہ ہوا اور پریشان ہو کر بولا، تیرا ناس ہو، تو مجھے بتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ
क्या किया है? कहा, हुजूर, उसने आपके लाडले बच्चे को ज़बह कर डाला है। अगर यकीन नहीं आता तो चलकर खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। जब राहिब दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि वाकई बच्चे का गला कटा हुआ है और उसका जिस्म खून में लथपथ है। राहिब ने औरत से पूछा, मेरे बच्चे को क्या हुआ है? औरत ने कहा, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया है, बल्कि आपके गुलाम ने मुझे गुनाह की दावत दी और जब मैंने इनकार किया तो इस शख्स ने बच्चे को ही कत्ल कर दिया। मैं इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हूँ। राहिब ने कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, तूने अपने मामले में मुझे शक में डाल दिया है। अब मैं नहीं चाहता कि तू मेरे साथ रहे। ये 50 दीनार ले और जहाँ तेरा जी चाहे चली जा। ये दीनार तेरी जरूरियात में काम आएंगी। औरत ने 50 दीनार लिए और अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाते हुए एक नामालूम मंजिल की तरफ चल दी। एक बस्ती के करीब गुजरी तो देखा कि मजमा लगा हुआ है और एक शख्स को फांसी दी जा रही है। बस्ती का सरदार भी वहीं मौजूद था। औरत सरदार के पास गई और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे 50 दीनार ले लो और इस शख्स को आजाद कर दो? सरदार ने कहा, लाओ रकम मेरे हवाले कर दो। औरत ने 50 दीनार दिए तो सरदार ने कैदी को रिहा कर दिया। वो कैदी उस पाकबाज औरत के पास आया और कहा, मेरी जान बचाकर तूने जो एहसान किया है, आज तक किसी ने मुझ पर ऐसा एहसान नहीं किया है। अब मैं तेरी खिदमत करता रहूंगा यहाँ तक कि मुझे मौत आ जाए। चुनांचे वो शख्स उस औरत को लेकर साहिले समंदर पर पहुंचा। कश्ती चलने को ही थी, दोनों कश्ती में सवार हो गए। औरत का हुस्न जमाल देखकर सारे मुसाफिर हैरान रह गए। वो औरतों वाले हिस्से में जाकर बैठ गई। लोगों ने कैदी से कहा, यह हसीनो जमील औरत कौन है? उस बदबख्त ने कहा, यह मेरी लौंडी है। कश्ती में मौजूद एक शख्स ने, जो उस औरत के हुस्न जमाल में गिरफ्तार हो चुका था, उसने कहा, क्या तुम अपनी लौंडी मुझसे बेचोगे? तो उसने कहा, मैं इसे बेचना नहीं चाहता क्योंकि ये मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। जब इसे मालूम होगा कि मैंने उसे बेच दिया है, उसे मेरी तरफ से बहुत तकलीफ पहुंचेगी। मैंने उससे वादा लिया है कि मैं उसे कभी नहीं बेचूंगा। मुसाफिर ने कहा, तू मुझसे मुंह मांगी कीमत ले ले और खामोशी से यहाँ से चला जा। तुझे क्या जरूरत है कि तू उसे बताए? लालची और एहसान फरामोश धोखेबाज कैदी ने माल की लालच में आकर मुसाफिर से बहुत सारा माल लिया और कश्ती से उतर गया। मुसाफिर ने उस खरीदो फरोख्त पर तमाम मुसाफिरों को गवाह बना लिया। वो नेक औरत चूंकि औरतों वाले हिस्से में बैठी थी, इसलिए इस मामले से बिल्कुल बेखबर रही। जब मुसाफिर को यकीन हो गया कि इसका मालिक जा चुका है, अब वापस नहीं आ सकता, वो औरत के पास गया और कहा, आज से तुम मेरी मिल्कियत में हो, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। औरत ने कहा, खुदा का खौफ करो, तूने मुझे कैसे खरीद लिया जबकि मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद को खरीदा नहीं जाता और किसी के मिल्कियत में नहीं हूँ। मुसाफिर ने कहा, अब ना तो तुम अपने मालिक के पास जा सकती हो और ना ही वो पैसे वापस कर सकती हो जो तेरे मालिक ने मुझसे लिया है। मैंने माल कसीर देकर तुझे खरीदा है और तमाम मुसाफिर इस बात पर गवाह हैं। अगर यकीन नहीं आता तो इनसे पूछ ले। सब मुसाफिरों ने कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, इसने वाकई तुझे खरीद लिया है, हम सब इस पर गवाह हैं। नेक पाकबाज और जुरतमंद औरत ने कहा, तुम्हारा सत्यानाश हो, अल्लाह से डरो, खुदा की कसम मैं आज़ाद हूँ। आज तक कभी कोई मेरा मालिक नहीं बना, मैं किसी की लौंडी नहीं हूँ। तुम सब इस मामले में अल्लाह से डर जाओ। लोगों ने उस मुसाफिर से कहा कि ये औरत इस तरह नहीं मानने वाली, इसके साथ जो सलूक करना है कर डाल, खुद ही मान जाएगी। ये सुनकर मुसाफिर उसकी तरफ बढ़ा। जब उस मजलूमा को अपनी इज्जत का खतरा महसूस हुआ तो उसने कश्ती वालों के लिए अल्लाह से बद्दुआ कर दी और फौरन कश्ती उन सब को लेकर डूब गई। सब के सब गरक हो गए और कश्ती के तख्ते पर औरत के सिवा कोई जिंदा न बचा। वो ईद का दिन था। बादशाह अपनी रियाया के साथ साहिल समंदर पर आया हुआ था। तमाम लोग खुशियां मना रहे थे। जब बादशाह ने कश्ती को डूबते देखा तो फौरन अपने गुलामों को हुक्म दिया कि जल्दी से कश्ती वालों की मदद को पहुंचो। सिपाही जब वहां पहुंचे तो उस नेक औरत के अलावा कोई जिंदा न मिला। वो उसे लेकर बादशाह के पास आ गए।
बादशाह ने हकीकत हाल दरियाफ्त करते हुए निकाह का पैगाम दिया, लेकिन उस औरत ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरा किस्सा बड़ा ही अजीबो गरीब है, मेरे लिए निकाह करना जायज नहीं है। बादशाह ने जब ये सुना तो उसके लिए अलग से एक मकान बनवा दिया और वो उसमें रहने लगी। लैलो नहार यानी रात दिन गुजरते रहे, वक्त की गाड़ी तेजी से चलती रही। बादशाह को जब भी कोई अहम मामला पेश आता तो उस पाकबाज औरत से मशवरा करता। अल्लाह ने उसके मशवरे में ऐसी बरकत दी कि उन पर अमल करके बादशाह को हमेशा कामयाबी होती थी। अब बादशाह के नजदीक ये पाकबाज औरत बहुत मुअज्जम हो गई थी। वो उसे बहुत बाबरकत समझने लगा और जब बादशाह की मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने तमाम वजीरों, मुशीरों और रियाया को जमा करके कहा, ऐ लोगों, तुमने मुझे कैसा पाया? सबने एक जबान होकर जवाब दिया, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको अच्छी जजा अता फरमाए, आप हमारे लिए रहीम बाप की तरह है। बादशाह ने कहा, ऐ लोगों, तवज्जो से मेरी बात सुनो। तुमने महसूस किया होगा कि हमारी नेक सीरत मेहमान खातून, उनके मशवरे की बदौलत हमारे मुल्क का निज़ाम बहुत बेहतर हो गया है। मैंने उसे अपने हर मामले में बाबरकत पाया है। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी तदबीर करना चाहता हूँ। लोगों ने तजस्सुस भरे अंदाज में कहा, आली जनाब, आप हुक्म फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? तो उस बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि अपने बाद उस नेक सीरत खातून को तुम पर मलिका मुकर्रर कर दूं। उस रहीम बादशाह के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए सब ने ये कहा, आली जनाब, जैसा आप चाहते हैं इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। चुनांचे बादशाह ने उस बाहया औरत को पूरे मुल्क की सल्तनत अता कर दी और उसकी वफात हो गई। और उधर उस औरत ने मलिका बनते ही ये ऐलान कर दिया कि पूरे मुल्क के लोग बैत के लिए जमा हो जाएं। हुक्म शाही मिलते ही मुल्क के गोशे गोशे से लोग नए बादशाह की बैत के लिए जमा हो गए। बैत का सिलसिला शुरू हो गया। जब उसका शौहर और देवर आए तो हुक्म दिया, उन दोनों को अलग अलग खड़ा कर दो। फिर वो शख्स आया जिसे फांसी दी जा रही थी। मलिका ने हुक्म दिया, इसे भी दोनों के साथ खड़ा कर दो। फिर नेक सीरत राहिब और उसका बदकार गुलाम आया, उन्हें भी लोगों से अलहदा कर दिया गया। जब तमाम लोग बैत कर चुके तो मलिका उन पांचों को अपने पास बुलवाया और अपने शौहर से कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? लेकिन वो शौहर उस औरत को नहीं पहचान सका कि वो उसकी बीवी है। उसने कहा, अल्लाह की कसम, आप हमारी मलिका हैं। लेकिन औरत ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, बीवी थी और आज भी बीवी हूँ। सुनो, तुम्हारे बदकिरदार भाई ने मेरे साथ क्या बुरा सलूक किया था। ये कहकर सारा वाकया उसे बताया और कहा, अल्लाह खूब जानता है कि तुमसे जुदा होने से लेकर आज तक मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। आज भी पाक दामन और महफूज हूँ। फिर उसने अपने देवर को बुलाकर फांसी का हुक्म दे दिया। फिर राहिब से कहा, अगर आपकी कोई हाजत हो तो बताइए, मैं वही औरत हूँ जो आपके पास जख्मी हालत में आई थी। आपके बेटे को आपके इस जालिम गुलाम ने ज़बह किया था। फिर गुलाम को बुलवाकर उसे भी कत्ल करवा दिया गया। अब उस आदमी की बारी थी जिसे फांसी दी जा रही थी और जिसने इसको बेचा था। जब वो आया तो उसे भी कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश चौराहे पर लटका दी गई और यूं वो अपने अंजाम बद को पहुंच गया। तो प्यारे दोस्तों, उस औरत ने इस तरह अपनी इज्जत की हिफाजत की और अपने पहले वाले शौहर के साथ रहने लगी।